تلنگانہ میں اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کا وعدہ کرنے والی کانگریس حکومت اپنے وعدوں کو فراموش کر بیٹھی۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے زیر اہتمام چلائے جانے والے ادارے کے ملازمین بھی تنخواہوں میں تاخیر سے پریشان ہیں۔ سال 2023 یعنی گزشتہ سال کے اسمبلی انتخابات سے قبل کانگریس پارٹی نے مائنورٹی ڈکلریشن جاری کرتے ہوئے اقلیتوں کے لیے بجٹ میں اضافہ کرنے اور 4,000 کروڑ روپے جاری کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، بے روزگار اقلیتی نوجوانوں اور خواتین کو سبسڈی پر قرض فراہم کرنے کے لیے سالانہ اضافی 1,000 کروڑ روپے مختص کرنے کا بھی اعلان کیا گیا تھا، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد کانگریس حکومت نے اپنے وعدوں کو فراموش کر دیا، اعلانات کو بھلا دیا۔ مائنورٹی بجٹ کے لیے صرف 3,000 کروڑ روپے مختص کرنے کا اعلان کیا گیا، لیکن ان 3,000 کروڑ روپیوں میں سے اب تک کتنی رقم جاری کی گئی ہے، کتنی رقم اقلیتوں کے لیے خرچ کی گئی ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ نامپلی علاقے میں واقع حج ہاؤس میں 4 ادارے ہیں جن کے چیئرمین کو سرکاری اسکیمات نافذ کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، لیکن جب چیف منسٹر ریونت ریڈی بجٹ میں اعلان کی گئی رقم جاری کریں گے تبھی تو اسکیمات نافذ کی جائیں گی۔ ماہانہ 2 لاکھ روپے تنخواہیں حاصل کرنے والے صدور نشین بھی اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے سنجیدہ دکھائی نہیں دیتے۔ دوسری جانب پچھلے 10 مہینوں سے آؤٹ سورسنگ ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں 2 سے 3 مہینوں کی تاخیر ہو رہی ہے، جس میں ٹمریز کے ملازمین بھی شامل ہیں۔ اگر وقت پر ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی جائیں گی تو ان کا گزر بسر کس طرح سے ہوگا؟ تلنگانہ حکومت کو اس جانب توجہ دینے اور ان کے مسئلوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں اقلیتی اسکیمات کی۔ حکومت کی تبدیلی کے باوجود، بجٹ مختص کرنے کا اعلان کرنے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی اسکیم کا اعلان نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی پرانی اسکیمات کو نافذ کیا جا رہا ہے۔ بجٹ صرف اعلان اور کاغذی کارروائی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ 4 اداروں کے چیئرمین اپنے اپنے کیبنز میں مصروف نظر آتے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان چاروں کو صرف اپنی کرسیاں عزیز ہے، اقلیتی برادری کی فلاح و بہبود سے یا پھر ان کے تکالیف سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اردو زبان کو تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان کہا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی محض ایک جملہ ہے کیونکہ اردو اکیڈمی کا بھی حال بہت ہی بدتر ہے۔ صرف چیئرمین اور افسران ہیں جو کہ سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دیگر اداروں کی طرح کانٹریکٹ ملازمین 2 سے 3 مہینوں تک تنخواہوں سے محروم رہ رہے ہیں، لیکن ان 4 اداروں کے چیئرمین کو ملازمین کی پرواہ نہیں ہے، ان کی دکانات چل رہی ہیں، شاید یہی ان کے لیے کافی ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ کچھ دن پہلے وقف بورڈ کا ایک اجلاس منعقد ہوا تھا جو کہ کانگریس حکومت کے قیام کے بعد پہلا اجلاس تھا۔ وہ اجلاس بند دروازے کے پیچھے منعقد ہوا۔ اجلاس میں کیا فیصلے لیے گئے، کیا ایجنڈے طے کیے گئے، وہ تو صرف شرکا ہی جانتے ہیں۔ ریاست کرناٹک اور پھر اس کے بعد ریاست تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات میں اقتدار حاصل کرنے والی کانگریس پارٹی اب مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات میں بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی مہاراشٹر میں انتخابی مہم چلانے جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تلنگانہ میں اقلیتوں کے ساتھ کیے جا رہے سلوک کا اثر مہاراشٹر اسمبلی انتخابات پر نہ پڑ جائے، کہیں اقلیتی ووٹوں کی تقسیم نہ ہو جائے اور اقتدار میں آنے کا خواب محض خواب ہی نہ رہ جائے۔ AICC صدر ملکارجن کھڑگے، LOP راہل گاندھی اور جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کو اس جانب توجہ دینے کی اور اقلیتوں سے کیے گئے وعدوں کو پورے کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا ہی نہیں، 4 اداروں کے صدور نشین کو بھی حرکت میں آنا چاہیے اور مائنورٹی اسکیمات کو نافذ کرنے کے لیے بجٹ حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ بجٹ کی اجرائی اور اسکیمات کے نفاذ کو لے کر بھی عوام میں کئی خدشات پائے جا رہے ہیں کیونکہ اب سال ختم ہونے والا ہے۔ اسکیمات نافذ کی جائیں گی بھی یا نہیں، جو بجٹ کا اعلان کیا گیا تھا اس بجٹ کو جاری کیا جائے گا بھی یا نہیں، یا پھر اس بجٹ سے اقلیتی طبقہ کا فائدہ ہوگا یا نہیں، یہ سوالات ہیں جن کے جوابات ملنے کی ضرورت ہے۔ تلنگانہ کی تمام یونیورسٹیز کے نومنتخب وائس چانسلرز، کونسل آف ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین پروفیسر بالا کرشن ریڈی نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے حال ہی میں تمام یونیورسٹیز کے لیے نئے وائس چانسلرز مقرر کیے گئے ہیں۔ ہفتے کو نومنتخب وائس چانسلرز
काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर बाला कृष्ण रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी के हमरा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला ने वाइस चांसलर्स को हिदायत जारी की है कि वो यूनिवर्सिटियों में एतमाद पैदा करने के लिए काम करें, क्योंकि कुछ अरसे से यूनिवर्सिटीज पर से एतमाद खत्म हो गया है। उन्होंने यूनिवर्सिटीज के एहतराम को बढ़ाने और जो निज़ाम दरहम बरहम हुआ है उसे बहाल करने की भी हिदायत जारी की है और यूनिवर्सिटीज की मौजूदा सूरत हाल का जामा मुताला करने और अमली इक़दामात करने को भी कहा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वाइस चांसलर्स का इंतखाब मेरिट और समाजी मसावात की बुनियाद पर किया गया है। वीसीज को चाहिए कि वो अच्छा काम करते हुए हुकूमत का नाम रोशन करें। यूनिवर्सिटीज की 100% सफाई करने और जामियात में मंशियात और गांजे की फरोख्त पर तवज्जो देने और उसकी रोकथाम करने की भी हिदायत दी गई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तानी सियासत उसी वक्त मजबूत होगी जब मुसलमानों को उनकी आबादी के बराबर हुकूक मिलेंगे। महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात पर AIMIM के सरबराह बैरिस्टर ओवैसी ने तबसरा करते हुए कहा कि मजलिस अपनी ताकत पर इलेक्शन लड़ रही है और मजलिस का ये मानना है कि हिंदुस्तानी सियासत उसी वक्त मजबूत होगी जब मुसलमानों को उनकी आबादी के बराबर हुकूक मिलेंगे। सदर मजलिस ने कहा कि आज हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में सिर्फ 4% मुसलमान MPs हैं और AIMIM की ये पूरी कोशिश है कि महाराष्ट्र में शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की हुकूमत दोबारा कायम ना हो सके। तेलंगाना के वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने ज़राई अफसरान के तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की और उन्हें सरकारी स्कीमों को मुस्तकीन तक पहुंचाने का मशवरा दिया। MCHRD में नए तैनात किए गए ज़राई अफसरान का तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें तेलंगाना के वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने अफसरान को मशवरा दिया कि वो सरकारी स्कीमों को मुस्तकीन तक पहुंचाए। उनका कहना था कि नए तैनात किए गए ज़राई अफसरान रियासत तेलंगाना को ज़राअत के मैदान में मुल्क में नंबर 1 बनाने के हुकूमत के अज़्म का हिस्सा बने और किसानों को रिवायती ज़राअत से ज़्यादा पैदावार देने वाली फसलों को उगाने की तरफ राग़िब करें। तेलंगाना पुलिस के होमगार्ड्स की बीवियों ने धरना चौक पर एहतजाज करते हुए वक्त पर तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया है। बटालियन पुलिस के एहलकारों की बीवियों के एहतजाज के बाद अब हैदराबाद में तेलंगाना पुलिस के होमगार्ड्स की बीवियों का एहतजाज देखा गया। धरना चौक पर एहतजाज करते हुए उन्होंने होमगार्ड्स की मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने और उन्हें वक्त पर तनख्वाहें देने का मुतालबा किया है। दनियासना पुलिस की जानिब से होमगार्ड्स की एहतजाज करने वाली बीवियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने फर्जी दस्तावेजात तैयार करते हुए अपनी ही बहन की जायदाद फरोख्त करने वाली एडवोकेट अनीस फातिमा जकरिया को गिरफ्तार कर लिया है। शहरियान हैदराबाद को पेशावर मुजरिमों से मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है। तफसीलात के मुताबिक साल 2007 में एडवोकेट अनीस फातिमा जकरिया के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था, चूँकि उन्होंने अपनी छोटी बहन की जायदाद फरोख्त कर दी थी। वो कई साल से महरूर थी, लेकिन कुछ दिन पहले मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने उसे 14 दिन के रिमांड पर चंचलगुड़ा जेल भेज दिया। FIR 77/2022 कहती है कि मुलजिमा ने भांजे हुसैन अहमद हुसैन अलबारिकी की जायदाद, जो कि बशीरबाग में वाक़ है, अपने बेटे इमरान जकरिया के नाम मुंतकिल की। धोखाधड़ी का ये मामला भी अदालत में ज़ेरे दौरा है। वाज़ेह है कि बहादुरपुरा पुलिस ने अनीस फातिमा और उनके बेटे इमरान जकरिया को डकैती के एक मामले में भी गिरफ्तार किया था। लोगों को अनीस फातिमा जैसे पेशावर मुजरिमों से मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है। तेलंगाना ऑटो यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी ने 5 नवंबर को चलो हैदराबाद महाधरना मुनक्किद करने का ऐलान किया है। तेलंगाना ऑटो यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी ने ऑटो ड्राइवरों की खुदकुशी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है और 5 नवंबर को इंदिरा पार्क में चलो हैदराबाद महाधरना मुनक्किद करने का ऐलान किया है।
تلنگانہ آٹو یونین JAC نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ حکومت کی عائد کی گئی پابندیوں کے باوجود اس ماہ کی 5 تاریخ کو مہادھرنا منعقد کیا جائے گا۔ تمام ڈرائیور سے مانگ کی گئی ہے کہ وہ پیچھے ہٹے بغیر اکٹھا ہو جائے، خواہ حکومت کتنی ہی سازشیں کر کے دھرنے میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے۔ تلنگانہ آٹو یونین جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے واضح کیا ہے کہ تمام وہیکل ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر مہادھرنا کو کامیاب بنایا جائے گا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے تھائی لینڈ کے وزیر خارجہ میریس سنگمیاپونگسا سے ملاقات کی۔ تھائی لینڈ کے وزیر خارجہ میریس ہندوستان کے 4 روزہ دورے پر ہیں۔ ہفتے کو ہندوستانی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ان سے دہلی میں ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ تھائی وزیر خارجہ کا رائل کیتھینا تقریب کے لیے دورہ دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ تاریخی اور ثقافتی تعلقات کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے ہندوستان تھائی لینڈ تعلقات، کثیر جہتی تعاون اور علاقائی ترقی پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ تھائی لینڈ کے وزیر خارجہ جمعرات کو ہندوستان پہنچے تھے۔ انہوں نے نئی دہلی میں وویکانند انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے اراکین کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ تھائی لینڈ اور ہندوستان کا امن اور پائیداری کو فروغ دینے کے لیے گوتم بدھ کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلانے میں اہم کردار ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاغذ نگر صدر عبدالمبین اور جنرل سیکرٹری جاوید ملناس نے کاغذ نگر DSP دفتر پہنچ کر اس گاؤں واقعے کے ملزمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ضلع کومرم میں آصف آباد کے کاغذ نگر اور کئی مقامات پر اور کئی علاقوں میں اقلیتوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کاروباری اداروں کو بھی نقصان پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کاغذ نگر کے AIMIM صدر عبدالمبین اور جنرل سیکرٹری جاوید ملناس متاثرین کے ساتھ مل کر DSP سے بارہا رجوع ہو چکے ہیں اور احتجاج کرتے ہوئے ملزمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ بارہا DSP سے رجوع ہونے کے باوجود ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا رہی ہے۔ ہفتے کو مجلسی صدر عبدالمبین جنرل سیکرٹری جاوید ملناس نے کاغذ نگر کے لوگوں کے ساتھ تیسری مرتبہ DSP دفتر کے روبرو احتجاج درج کروایا اور اس گاؤں واقعے کے ملزمان کو سخت سے سخت سزا دینے کی مانگ کی۔ حیدرآباد کے افضل گنج علاقے میں واقع گورنمنٹ ڈینٹل ہاسپٹل اور کالج کے آس پاس کچرے کے انبار پائے جا رہے ہیں۔ اسپتال آنے والے مریضوں، ڈاکٹروں اور عملے کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ محکمہ عظیم تر بلدی حیدرآباد کی جانب سے شہر کو صاف ستھرا رکھنے اور کچرے کی نکاسی کے اقدامات مؤثر طریقے سے نہیں کیے جا رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ ڈینٹل ہاسپٹل اور کالج واقع افضل گنج کے آس پاس کچرے کے ڈھیر لگے ہیں۔ مریضوں کو اسپتال میں داخل ہونے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر اور دیگر عملہ بھی اسی مسئلے سے دوچار ہے، لیکن محکمہ بلدیہ سے کوئی شکایت نہیں کی جا رہی ہے اور محکمہ بلدیہ کی جانب سے بھی بھرپور لاپرواہی برتتے ہوئے کچرے کی نکاسی نہیں کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں علاقے میں تعفن پھیلا ہوا ہے۔ گورنمنٹ ڈینٹل ہاسپٹل اور کالج میں بھی تعفن پایا جاتا ہے، مریضوں کو اور عملے کو مشکلات کا سامنا ہے۔ AIMIM یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے آتش زدگی کی وجہ سے شدید زخمی ہونے والی 15 سالہ شروتی کے دوران علاج فوت ہو جانے پر افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں پرسہ دیا ہے۔ یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے چندرا نگر میں 28 اکتوبر کو آتش زدگی کے ایک حادثے میں 15 سالہ شروتی شدید زخمی ہو گئی تھی۔ وہ ملک پیٹ کے یشودا اسپتال میں زیر علاج تھی اور علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دم توڑ گئی۔ AIMIM سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے شروتی کے گھر پہنچ کر اس کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ جعفر حسین معراج نے بتایا کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے تینوں فوت ہونے والے افراد کے لیے ایکس گریشیا کے لیے نمائندگی کی ہے اور کلکٹر آفس سے اس نمائندگی کو سیکریٹریٹ بھیج دیا گیا ہے۔ انہوں نے غمزدہ خاندان کو پرسہ دیا ہے اور اس دکھ کی گھڑی میں
मजलिस की जानिब से उनका साथ देने की यकीन दहानी कराई है। तेलंगाना के महकमे सियाहत ने नागार्जुना सागर से श्रीशैलम तक कश्ती के सफर का इफ्तिताह अंजाम दिया। फितरत से मोहब्बत करने वाले और सयाह जिस वक्त का इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार आ ही गया। तेलंगाना के महकमे सियाहत ने कृष्णा नदी में सैर की सहूलत फराहम कर दी है। हफ्ता 2 नवंबर को महकमे सियाहत ने एक टूर पैकेज शुरू किया। नलगोंडा जिले के नागार्जुना सागर से श्रीशैलम तक अब कश्ती के जरिए सफर किया जा सकता है। बताया गया है कि 5 साल पहले इस सफर को शुरू करने का मंसूबा बनाया गया था, सहूलत को फराहम करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन कोरोना वबा और नागार्जुना सागर में पानी की सतह मुनासिब न होने की वजह से इसको मुलतवी किया जा रहा था। चूंकि तेलंगाना के साथ साथ बालाई इलाकों में भी वाफर बारिश हो रही है, इसलिए दरियाए कृष्णा में श्रीशैलम से नागार्जुना सागर तक पानी की ज़्यादा मिक़दार दस्तयाब है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए महकमा सियाहत ने कश्ती का सफ़र शुरू करने का फैसला किया है। तकरीबन 120 किलोमीटर तवील इस सफ़र के पहले दिन रियासत के साथ साथ आसपास के इलाकों के सयाहों की भी बड़ी तादाद महसूस होती नजर आई। नागार्जुना सागर से नंदीकोंडा के जरिए ये सफ़र तय किया जाएगा। एलेश्वरम, सैलेश्वरम, मशरक़ी घाट और नल्लामला जंगल की खूबसूरती भी देखी जा सकेगी। पुराने शहर के इलाके आजमपुरा में मोर नजर आने पर मुकामी दुकानदार मोहम्मद अमजद ने मोर को पकड़कर चादरघाट पुलिस के हवाले कर दिया। ज़राए ने बताया है कि चादरघाट पुलिस हदूद के इलाके आजमपुरा में मोहम्मद अमजद नामी एक दुकानदार को मोर नजर आया। उसने फौरन मोर को पकड़कर चादरघाट पुलिस के हवाले कर दिया। ये वाज़ेह नहीं हो पाया है कि रिहायशी इलाके में मोर कहां से आया। पुलिस का कहना था कि कौमी परिंदे को महकमा जंगलात के हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। आसिफाबाद जिले में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुनक्किद जात पात की मरदमशुमारी की राय इज्तिमा के इजलास में कांग्रेस पार्टी कारकुनान के दरमियान झगड़ा हुआ। ज़राए ने बताया है कि आसिफाबाद के एरोज गार्डन फंक्शन हॉल में हफ्ते को कांग्रेस पार्टी की जानिब से जात पात की मरदमशुमारी के राय के इज्तिमा का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान कांग्रेस पार्टी कारकुनान के दरमियान तसादम हुआ। कांग्रेस पार्टी के डीसीसी सदर विश्व प्रसाद राव और आसिफाबाद हल्के के इंचार्ज श्याम नायक ने बहस में तकरार की और फिर एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे। कांग्रेस के एक कारकुन गडाला सत्या पर भी हमला हुआ और वो जख्मी हो गए। दोनों फरीकों के दरमियान तसादुम की वजह से माहौल कशीदा हो गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों गिरोह को बाहर भेज दिया। सड़क पर भी डीसीसी सदर विश्व प्रसाद राव के खिलाफ नारेबाजी की गई। इंचार्ज श्याम नायक के हामियों ने हमले के जिम्मेदारों को फौरन गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। जिला एसपी श्रीनिवास राव के हुक्म पर कागजनगर डीएसपी रामानुजम ने हड़ताली करने वाले गिरोह को मुतमईन किया है, लेकिन उनका एहतजाज खत्म नहीं हो पाया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने बीआरएस की कारगुजार सदर केटीआर से कहा है कि वो मूसी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक कर रहे अपने ड्रामों को बंद कर दें, क्योंकि ये मंसूबा बीआरएस पार्टी और साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने ही बनाया था। मूसा नदी की तजदीद पर एआईएमआईएम के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए पूछा है कि क्या बीआरएस ने मूसा नदी के लिए मंसूबा नहीं बनाया था और क्या मजलिस ने इसकी मुखालिफत नहीं की थी। उन्होंने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीमारी को बीआरएस ने ही शुरू किया था और पार्टी को खुद शनासी की जरूरत है, क्योंकि मंसूबाबंदी उसने ही की थी। सदर मजलिस ने कहा कि आज भी मजलिस यही कह रही है कि अगर घरों को छुए बगैर काम किया जाता है तो मजलिस इसका इस्तकबाल करेगी। साल 2023 के असेंबली इंतखाबात का तज़किरा करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि बीआरएस ने मजलिस की वजह से ही जीएचएमसी में जीत हासिल की है और अपनी गलतियों की वजह से ही बीआरएस इक़्तिदार से महरूम हो गई है। हैदराबाद एमपी ने कहा है कि बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को मूसी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक कर रहे अपने
ड्रामों को रोकना चाहिए क्योंकि ये मंसूबा बीआरएस पार्टी का ही मंसूबा है और वो केटीआर से ज़ाती मुलाकात करते हुए इस पर अमल दरामद न करने के लिए नुमाइंदगी कर चुके हैं। उन्होंने पूछा है कि अगर अब कांग्रेस हुकूमत इस मंसूबे को नाफिज कर रही है तो इसमें कौन सी गलत बात है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। मरीज के खून का नमूना लिए बगैर मरीज के रिश्तेदारों को ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट थमा दी गई। ये वाक़या कामारेड्डी ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रामू नामी मरीज को कै और इसहाल पर बांसवाड़ा के एरिया हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। मरीज और उसके रिश्तेदार उस वक्त हैरत ज़दा रह गए जब मरीज के खून का नमूना लिए बगैर खून की रिपोर्ट हवाले कर दी गई। मरीज के रिश्तेदारों ने इस पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट से इस वाक़े की शिकायत की और इंसाफ करने की ख्वाहिश की। बंजारा हिल्स पुलिस ने नाखिस मोमोज तैयार करने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। नंदी नगर के करीब लगाए गए मोमोज के स्टॉल में मोमोज खाने के बाद 20 अफराद बीमार हो गए थे, जिनमें रेशमा बेगम नामी खातून हॉस्पिटल में इलाज के दौरान फौत हो गई थी। डॉक्टर्स ने इस बात की तस्दीक की कि नाखिस मोमोज खाने की वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। इस सिलसिले में मुतवफ़ी खातून के रिश्तेदारों ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में मोमोज स्टॉल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। संतोष नगर पुलिस स्टेशन हदूद के एक मंदिर में कल शब आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस का अमला वहां पहुंच गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काफ़ी जदोजहद के बाद काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। तिरुपति में कमसीन लड़की की इस्मत रेज़ी के बाद उसके कत्ल की वारदात पेश आई। मुलजिम की शिनाख्त 22 साला सुशांत के तौर पर की गई है। ये लड़की का करीबी रिश्तेदार है जिसने झाड़ियों में ले जाकर इसकी इस्मत रेज़ी की और इसके कत्ल के बाद उसकी नाश को दफन कर दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वक्फ बोर्ड और वक्फ कौंसिल में गैर मुस्लिम अफराद को शामिल करने के मोदी हुकूमत के फैसले पर तनकीद की। उन्होंने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के सदर नशीन की तरफ से रखी गई शर्त का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि सिर्फ इस देवस्थानम के लिए सिर्फ हिंदुओं को काम करना चाहिए। किशनबाग की MO कॉलोनी में स्क्रैप के गोदाम में कल शब बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला पर मुकामी कारपोरेटर हुसैनी पाशा ने वहां पहुंचकर फायर ब्रिगेड के अमले को इस बात की इत्तला दी। मुकामी अफराद ने आग बुझाने के काम में मदद की क्योंकि गलियां तंग होने की वजह से फायर ब्रिगेड मुकामी वाक़े पर नहीं आ सका। बादअज़ां फायर ब्रिगेड की छोटी गाड़ी को तलब करते हुए आग पर काबू पाया गया। आग के साथ कसीफ धुआं भी निकल रहा था। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। ATM से रकम की चोरी की कोशिश की इत्तला पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। यह वाक़या निर्मल टाउन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक निर्मल टाउन में कैनरा बैंक के मैनेजर ने डायल 100 पर फ़ोन करते हुए इत्तला दी कि नामालूम शख्स ATM से रकम की चोरी की कोशिश कर रहा है। इस इत्तला के साथ ही पुलिस जो पेट्रोलिंग पर मौजूद थी ने फौरी ATM सेंटर पहुंचकर फौरी तौर पर CCTV फुटेज का मुआयना करने के बाद करीबी इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बापू घाट को गांधी सरोवर में तब्दील किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू के बाद अब रेवंत रेड्डी रियासत में सबसे ऊंचा गांधी जी का मुजस्सिमा कायम करने का एजाज़ हासिल करेंगे। 22 फीट का गांधी जी का मुजस्सिमा तेलंगाना का सबसे ऊंचा मुजस्सिमा है, जिसे 1999 में चंद्रबाबू नायडू के वज़ीर आला के दौर में नस्ब किया गया था। मौजूदा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में बापू घाट पर दुनिया का सबसे ऊंचा गांधी जी का मुजस्सिमा नस्ब करने का मंसूबा बनाया था और इस सिलसिले में ऐलान भी किया था।
मुल्क का सबसे ऊंचा गांधी जी का मुजस्सिमा पटना के गांधी मैदान में है। इसकी ऊंचाई 72 फीट है। इस मुजस्सिमे को 2013 में नस्ब किया गया था। 2018 में सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का 182 मीटर का मुजस्सिमा कायम किया गया था। सूर्यापेट जिले में पेश आए सड़क हादसे में 30 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के कोदा टाउन के कटकम्मा गुड़म इलाके में उस वक्त पेश आया जब कौमी शाहरा पर दो बसों का तसादम हो गया। हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली आरटीसी बस के आज सुबह सड़क के किनारे ठहरी एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के पीछे से टकरा जाने के नतीजे में 30 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए तलबा ने खुराक और कॉस्मेटिक चार्जेस में 40% इजाफे का जश्न मनाया और दिवाली की तक़रीब के मौके पर पटाखे भी फोड़े। इस मौके पर वज़रा और अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। नागार्जुन सागर से श्रीशैलम के लिए किश्ती के सफ़र का आगाज़ किया गया है। ये किश्ती की खिदमत आज शुरू की गई हैं। आज शाम तक ये किश्ती श्रीशैलम पहुंच जाएगी और दर्शन के बाद कल दोबारा नागार्जुन सागर वापस पहुंचेगी। इसमें तकरीबन 100 सयाह सफ़र कर रहे हैं। AICC के जनरल सेक्रेटरी के वेणुगोपाल, झारखंड के इंतखाबी स्टार कैंपेनर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, झारखंड PCC के सदर केशव महंत कमलेश के साथ कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने झारखंड असम्बली इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर जारी किए जाने वाले इंतखाबी मंशूर पर तफसीली तौर पर तबादले ख्याल किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए शहर में हालिया हसास मजहबी मसाइल पर तबादला ख्याल किया, जिसमें हैदराबाद के तमाम जोन्स के नुमाइंदे शरीक थे। इजलास के दौरान शुरका ने चंद अफराद की जानिब से पैदा किए जाने वाले खलल के हालिया वाक़यात की मुतफ़िक़ा मज़म्मत की और तबक़ात के दरमियान काबिल एहतराम बातचीत की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने तबक़ात और क़ानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के दरमियान राब्ते के इस्तेहकाम के लिए काम करने का भी अहद किया ताकि मसाइल की बरवक्त यकसुई को यकीनी बनाया जा सके। अमन कमेटी ने मुख्तलिफ मजहबी ग्रुपों के दरमियान बाहमी इत्तेहाद और इश्तराक के लिए इन तबक़ात के दरमियान मुलाक़ातों के प्रोग्राम की तजवीज़ पेश की। आसिफाबाद के वानखेड़ी मंडल मुस्तखर के ट्राइबल स्कूल की तालिबात हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। चारशंबे को तकरीबन 30 तालिबात उल्टियाँ और इसहाल की शिकायत के बाद दवाखाने से रुजू की गई थी, जहां पर वो ज़ेर इलाज हैं। ताहम जुमेरात को मज़ीद 4 तालिबात बीमार हो गई। इनकी हालत नाजुक होने से लड़कियों को मंचरियाल के सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। बाद पता चला कि जुमे को मज़ीद 11 तालिबात अलील हो गई। एयर मार्शल अजय कुमार अरोरा ने एयर हेडक्वार्टर्स वायु भवन में एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के तौर पर अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। एयर मार्शल ने ओहदे का जायज़ा हासिल करने के बाद कौम के लिए अजीम कुर्बानी देने वाले मुसल्लह अफवाज के जवानों के एजाज़ में कौमी जंगी यादगार पर फूल निछावर किए। रियासती हुकूमत ने 6 नवंबर से प्राइमरी स्कूल्स के लिए निस्फ दिन के औकात का ऐलान किया है। स्कूल सुबह 9 बजे तक दोपहर 1 बजे काम करेंगे। इसका निफाज सरकारी, लोकल बॉडी और इमदादी प्राइमरी स्कूल्स पर होगा, क्योंकि इन स्कूल्स के असातिज़ा 3 हफ्तों के लिए ज़ात पर मबनी सर्वे में हिस्सा लेंगे। इन स्कूल्स से ख्वाहिश की गई है कि वो शेड्यूल के मुताबिक बच्चों को दोपहर का खाना फराहम करने के बाद उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दें। इस सिलसिले में जारी करदा मेमो के मुताबिक रियासत के सरकारी प्राइमरी स्कूल्स में खिदमात अंजाम देने वाले 36,559 SGT, 3,414 प्राइमरी स्कूल हेड मास्टर्स की खिदमात से इस्तिफादा ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी के लिए किया जाएगा। संजीव चोपड़ा सेक्रेटरी DFPD हुकूमत हिंद ने तेलंगाना का दौरा किया, जहां उन्होंने वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी से तफसीली तौर पर मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान अवामी निज़ाम तक़सीम के मसले पर तबादला ख्याल किया गया और इसमें बेहतरी के सिलसिले में भी बातचीत की गई। साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली थलसानी श्रीनिवास यादव ने हुज़ूराबाद के MLA पेद्दी कौशिक रेड्डी के साथ यादव बरादरी की सदर तकरीब में शिरकत की, जो आज रिवायती अंदाज में मुनक़िद की गई। हर साल ये तकरीब बड़े पैमाने पर मुनक़िद की जाती है।
Germantown Super Speciality Hospital, National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।